A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the important chapter morphology of flowering plant. In this chapter, I am going to start with discussing about the external structure of the flowering plants. So, external structure कैसा होता है और this chapter deal with the external structure of flowering plants. Now, the flowering plants have different parts. This part is, for example, the root, stem and leaves. इसके सिवा फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो हियर इज अगर हम एक कॉमन स्ट्रक्चर देखें तो हियर इज अ now root. Now different structure कौन कौन से होंगे? Here is the main structure are stem, root and here is leaf and the flower is also associated because we are discussing about the structure of flowering plants or morphology of flowering plants. So here is flower and flower. देन जो स्टेम होगा वहां पे स्टेम में जगह जगह पर नोड्स होंगे, इंटर नोड्स, जहां से लीफ अराइज करेंगे. दिस पोर्शन इज नोन एज node. Here is node and in between the node the segment is known as internode. So these are the certain part of the flowering plant or flowering plants. Here is the primary root, and here is secondary root. तो these are the some part of the flowering plants. Now start करते हैं with the root से. इस चैप्टर में हम different type of root के बारे में डिस्कस करेंगे, their development, function and how the modification takes place in the root for the survival of the plants. और ये survival कैसे अपना survival करने के लिए कैसे modified root का formation होता है, ये सभी डिस्कस हम इस चैप्टर में करेंगे. So start करते हैं with the roots. Root. सबसे पहले रूट का डेवलपमेंट. रूट इज डेवलप फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो. डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट से इनका डेवलपमेंट होता है रूट का. Then on the basis of the origin, कहाँ से ये originate होते हैं? They are divided into the different type of root, that is tap root, adventitious root and fibrous root. These are the main important type of root. सबसे पहले tap root डिस्कस करते हैं. First is tap root. Tap root is developed from the radical, but the primary root होगा, primary root is well developed and the secondary root is originate from the primary root. So here is a primary root. From the primary root the secondary and tertiary root originates or arises. Primary root and here is secondary root.
secondary root and tertiary root. Tertiary root. So first thing is that the root is developed from the radical. So develop from the radical of embryo, radical part. Then second is thing that the primary root is well developed. So primary root is well developed. Well developed होता है and the secondary and tertiary root is arises from the primary root और primary root primary give rise to primary root secondary root. तो secondary root and then tertiary root and quaternary root, these are developed from the primary root. प्राइमरी रूट से इनका डेवलपमेंट होता है. तो मेन रूट जो होगा वेल डेवलप होगा. एग्जाम्पल इन जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स जितने भी होंगे वो उसमें कैसे दिखाई देंगे. ये प्राइमरी सेकेंडरी जो प्राइमरी रूट है वो वेल डेवलप. प्राइमरी रूट इज वेल डेवलप इन डाइकॉट प्लांट, whereas द जो सेकेंडरी रूट है दे आर अराइज फ्रॉम द प्राइमरी रूट एंड फ्रॉम द सेकेंडरी द टर्शियरी एंड क्वाटरनरी रूट्स अराइजेस फ्रॉम द सेकेंडरी रूट. These are the main important type of the root. Now second type of root is the fibrous root. Fibrous root. In the fibrous type of root, the primary root is disappeared or degenerated after some time, और फिर उसके बाद सेकेंडरी और टर्शियरी रूट जो रहेंगे वही एग्जिस्ट करेंगे. प्राइमरी रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो डिसअपियर्ड होते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं कुछ टाइम बाद. और फिर यहाँ पे जो रूट का अपीयरेंस होता है वो फाइब्रस लाइक बहुत सारे फाइन रूट्स निकल जाते हैं. इसकी वजह से इन सभी को जो रूट होंगे फाइब्रस रूट बोला जाता है. नाउ द रूट इज डेवलप फ्रॉम रेडिकल. रेडिकल से तो डेवलप होंगे बट द प्राइमरी रूट become generate after some time. And the secondary and tertiary root exist करेंगे throughout their life. ये secondary और tertiary root exist करेंगे और जो जितने जो appearance होगा इनका वो कैसे, here is stem mainly and here is a root of grasses. Example is root of, here is a क्योंकि प्राइमरी रूट इसमें दिख नहीं रही है, डीजनरेट करके ये डिसअपियर हो गई है और यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट ही दिखेगी. तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट वो दिखेंगे. नाउ एग्जांपल इज द जितने भी राइस होते हैं या मेज और wheat and grasses monocotyledonous plants जितने भी होंगे उन सभी में ये रूट फाइब्रस रूट देखने के लिए मिलते हैं. जहां पे प्राइमरी रूट डेवलप होंगे रेडिकल से बट दे बिकम द प्राइमरी रूट बिकम डीजनरेटेड आफ्टर द सम टाइम एंड द जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट है ये एग्जिस्ट करेंगे थ्रू आउट द लाइफ. एंड द थर्ड टाइप ऑफ रूट इज एडवेंटिशियस रूट. थर्ड इज एडवेंटिशियस रूट.
type of root, the root arises from the different part of the plant other than the radicle. So radicle से develop करने के सिवा ये अगर different part से arise करते हैं तो इस type के root को adventitious root बोला जाता है. Arises from the different part of the plants. कई सारे प्लांट्स डिफरेंट प्लांट के पार्ट से ये अराइज करते हैं. इस तरीके के रूट को एडवेंटिशियस रूट बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल हियर इज एग्जाम्पल इज मॉन्स्टेरा बनियान ट्री, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रूट अराइज करते हैं, डिफरेंट पार्ट से अराइज करेंगे एंड दे आर मेनली ये बनियान ट्री में सपोर्ट के लिए ये होते हैं. तो अदर देन ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं तब इन्हें एडवेंटिशियस रूट ये डिफरेंट फंक्शन के लिए होता है. मेन रूट का फंक्शन होगा फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, बट इन दिस टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट दे ऑल्सो परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल इन सपोर्ट के लिए प्रोवाइड होते हैं, बैलेंस बनाने के लिए करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कि प्लांट्स प्रॉपर वे से वो सॉइल से अटैच रहे. तो ये डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे रूट के होंगे. सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन भी शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन ऑफ रूट तो डिफरेंट फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं. प्राइमरी फंक्शन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ये एब्जॉर्ब इसके लिए फंक्शन करते हैं. नाउ सेकेंड फंक्शन इज स्टोरेज में फंक्शन करेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड. एंड द थर्ड फंक्शन इज ऑल्सो फंक्शन इज respiration. Fourth is reproduction. बहुत सारे प्लांट्स जो ऐसे होते हैं जिन्हें जो रूट के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो रूट्स होंगे ये अलग इन्हें अगर लगा दिया जाए पर्टिकुलर उस रूट को तो वहां से एक न्यू प्लांट अराइज कर जाएगा और न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा. कहाँ से? इसलिए इस वजह से इसलिए रिप्रोडक्शन में भी इंक्लूड किया जाता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. नाउ स्टोरेज ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके फंक्शन करते हैं. नाउ द डिफरेंट रीजन ऑफ रूट्स. सो ये डिफरेंट रीजन कौन कौन से रूट के होंगे थ्रू जिसके ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट रीजन कौन कौन से होंगे. हियर इज रूट एंड root is covered by the root cap is perform the protection of the root during the penetration in the soil. So penetration और आगे मूव करने के लिए जो रूट टिप है ये कवर्ड रहते हैं रूट कैप से, जिसकी वजह से ये और डेप्थ तक इन्हें वे मिल पाए, पेनिट्रेट कर पाए सॉइल को. तो इस वजह से नाउ हियर इज रूट कैप known as root cap. Now root cap के जस्ट ऊपर द जो रीजन प्रेजेंट होगा इसे बोला जाएगा रीजन ऑफ इलॉन्गेशन. Now just about the reason of elongation, the reason is known as the reason of maturation, जहां से सेकेंडरी रूट और रूट हेयर निकले होंगे. Here is root hair
हेयर एंड पूरे रीजन को बोला जाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन जहां पे रूट मैच्योर होके यहां से रूट हेयर अराइज करने लग जाएंगे, निकलने लग जाएंगे, रूट हेयर का फॉर्मेशन होगा। नाउ बिलो द रीजन ऑफ मैचुरेशन देयर इज अ रीजन ऑफ इलोंगेशन विच हैव मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। इस रीजन में मेरिस्मेटिक एक्टिविटी दैट मीन्स कि यहाँ की सेल्स में प्रोलिफरेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, प्रोलिफरेट करके नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगी, जहां से ये पर्टिकुलर ये रीजन इलोंगेट होगा और ये पेनिट्रेट कर पाएंगे रूट तक, सॉइल के डेप्थ तक पेनिट्रेट होकर एब्जॉर्ब कर पाएंगे वाटर एंड मिनरल। तो दे the reason of elongation have the meristematic activity. In the meristematic activity, the cells of these region undergoes in the mitotic division. By the mitotic division, they increase their number, and by the increasing their number, the primary root become elongated, and the root hair primary अगर primary है तो primary, otherwise secondary और tertiary they all have the root जनरली ये क्या कवर्ड बाय द रूट कैप रहेंगे, कवर्ड रहेंगे रूट कैप से, जिससे कि ये इजिली सॉइल में पेनिट्रेट कर सके और वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। दीज आर द डिफरेंट रीजन ऑफ द रूट विच परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। द रीजन ऑफ मैचुरेशन हैव द मैच्योर एपिडर्मल सेल्स विच गिव राइज टू द रूट हेयर एंड हेल्प दीज रूट हेयर मेनली these root hair are unicellular in nature and mainly responsible for the absorption of the water and minerals. And the below the reason of maturation there is a reason of elongation which have the meristematic activity, and the cells of these region undergoes in mitotic division and they increase their number. After the increasing in their number, the finally root become elongated and they penetrate the soil for the absorption of the water and the minerals. So both together help in the absorption of water and mineral. Now next is the modification of cap, root cap, which help in the penetration or also यहाँ पे penetration में help करेंगे और perform the function of absorption of water and minerals. Now next topic is the modifications of root. Modifications of root. There are different kind of modification of root which are responsible for the function other than the absorption of mineral and water. So mineral और water को absorb करने के सिवा ये different function perform करते हैं, उसके लिए modified हो जाते हैं. For example, here is a storage. The function is storage of food. Storage of food. Some of the root of plant becomes swollen and ये swell होके मतलब कि swell हो जाएंगे and then they store the starch and food inside the root for providing the nutrition for the adverse condition में या unfavorable condition में वो particular अपने आप को nutrition provide कर सके तो वो खुद के लिए वो इस food store करते हैं और modified होते हैं. For example, tap root of these जो modification होगा वो tap root of the carrot और turnip. Example is turnip. ये क्या करते हैं, ये फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड होते हैं. यहाँ पे जो रूट है, रूट ऑफ दीज प्लांट्स बिकम एंड स्टोर फूड फॉर देयर सर्वाइवल. अपने सर्वाइवल के लिए ये फूड स्टोर करते हैं. तो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ द रूट. ये क्या कर रहे हैं कि अदर देन द मिनरल एब्जॉर्प्शन और वाटर एब्जॉर्प्शन के सिवा अदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें मॉडिफाइड फंक्शन मॉडिफाइड रूट बोला गया. नाउ सेकंड इज द एडवेंटिशियस रूट ऑफ बनियान, दैट इज क्रॉप रूट. Is an adventitious
this root is adventitious root of banyan tree mainly perform the function other than the absorption, that is for the hanging. This kind of root is hanging root, and the function is support. सपोर्ट के लिए होते हैं, मतलब कि प्रॉपर बैलेंस बनाने का काम करते हैं. बनियान ट्री इज अ ह्यूज ट्री, और बहुत बड़ा ट्री होता है, लार्ज ट्री होता है, तो जिसकी वजह से वो प्रॉपर ये विंड में या हाई विंड एनर्जी में ये गिर न जाए. तो इस वजह से जो सपोर्टिंग रूट्स होते हैं इन्हें प्रॉप रूट्स बोला जाता है. जो एडवेंटिशियस एक्चुअली रूट होते हैं जो डिफरेंट ब्रांचेस से निकले रहते हैं, हैंगिंग, दीज आर द हैंगिंग रूट्स, और ये मेनली सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सपोर्ट का फंक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं. ये पर्टिकुलर उस ट्री को बैलेंस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो गिरे नहीं ना. थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज द रेस्पिरेशन, और इसी रेस्पिरेशन और स्टिल्ट अदर देन द रेस्पिरेशन. निमेटोफोर्स होते हैं. नाउ स्टिल्ट रूट आर ऑल्सो परफॉर्म द सेम फंक्शन. दीज आर द ऑल्सो एडवेंटिशियस root of sugarcane and maize and maize. The still root of maize and sugarcane also help in the support. Function is support. ये भी सपोर्ट के लिए सपोर्ट का फंक्शन करते हैं स्टिल रूट, but they are quite different than the prop root because the adventitious root of banyan are hanging type of root. They arise from the different different region of the branches से, but ये hang करेंगे. ये sometime ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करें, बट द स्टिल्ट रूट क्या करेंगे, ये ऑलवेज पेनिट्रेट द सॉइल फॉर द सपोर्ट. ये एक जो शुगर केन है और मेज है, ये इनके स्टेम ये सीधे खड़े रहे, एक रॉड लाइक क्योंकि स्ट्रक्चर प्लांट का होता है वो एज सच सीधे खड़े रहे, जिसकी वजह से ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उस स्टेम को, वो सीधा रह सके. तो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्ट, बट ये इससे डिफरेंट होते हैं. दीज आर द हैंगिंग टाइप ऑफ रूट, बट दे आर generally they are attached with the soil or penetrate the soil. Now fourth type of root is nematophore or nematophore. These are the respiratory root, और मेनली जो डैम्प एरियाज में जितने प्लांट ग्रो करते हैं डैम्प एरिया में, क्योंकि वहां पे जो सॉइल रहेगा वो मडी सॉइल रहेगा और वहां पे ऑक्सीजन डिफ्यूजन कम हो पाता है. ऑक्सीजन ऐसे सॉइल में बहुत ही कम अमाउंट में होता है, सो दैट द जो इस एरिया में ग्रो करते हैं जितने भी प्लांट्स, उनके रूट बाहर निकल जाते हैं. वो वर्टिकल रन तो करते हैं, साथ में वो बीच बीच में बाहर निकले रहते हैं, जिसकी वजह से एक रेस्पिरेशन वो ऑक्सीजन ले सके. तो दिस टाइप ऑफ रूट आर नोन एज द न्यूमैटो. रूट इज रेस्पिरेटरी रूट और न्यूमैटोफोर्स. रूट्स फॉर respiration. रूट्स फॉर रेस्पिरेशन, ये जनरली क्या करते हैं, वर्टिकली ये रन करते हैं, बट बीच बीच में ये बाहर निकले रहेंगे. तो जितने इस तरीके से ये बाहर निकले रहते हैं और ये क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे. जनरली ये ऐसे प्लांट में न्यूमैटोफोर्स होते हैं, दोज आर जो ग्रो करते हैं इन द स्वैम्प डंप एरिया, और डंप एरिया में जो ग्रो करते हैं या दलदली एरिया में जितने भी सॉइल में ग्रो करेंगे, तो ऐसे प्लांट्स में न्यूमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं. वो रूट्स रेस्पिरेशन में मेनली हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल इज मैंग्रोव फॉरेस्ट. यहाँ पे क्या होते हैं, राइजोफोरा मेनली आर दीज आर द रूट इम्पॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन, और ये जनरली ये सॉइल के बाहर निकले रहते हैं फॉर द रेस्पिरेशन.
और यहाँ पे ये सॉइल के बाहर क्यों, बिकॉज डंप एरिया में या स्वैम्प एरिया में जो सॉइल होते हैं, मडी सॉइल और क्ले बहुत ज्यादा होते हैं, तो दलदली जो एरिया होता है वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है ऐसे सॉइल में, सो दैट जो रूट होंगे वो बीच बीच में बाहर निकले होंगे। इसी को बोला जाता है राइजोफोर और न्यूमेटोफोर्स, बिकॉज दे आर हेल्प इन द रेस्पिरेशन ऑफ दीज प्लांट्स। मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट होते हैं ये ग्रो करते हैं ऐसे ही एरिया में, और जो रूट होते हैं इनके मॉडिफाइड होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। नाउ क्विक रिवीजन कर लेते हैं दैट हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया। रूट इज डेवलप फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। द डिफरेंट रीजन आर प्रेजेंट ऑन द रूट, दैट इज रूट कैप विच protect the root for the during the penetration of the soil, and above to the root cap there is a region is known as the region of elongation. Region of elongation mainly responsible for and have the meristematic activity and responsible for the elongation, because the cells of this region divided mitotically, and the reason finally they increase in number of the cells inside the root, and जब increase कर जाएंगे number of cells so that the root become elongated. Now above to the region of elongation there is another region is known as the region of maturation. Now this region give rise to the root hairs. Primary maybe primary root give rise to the secondary, and secondary root give rise to the tertiary root. After the maturation, after the maturation, because these are the reason of maturation, they arise mainly the root hair arises from these reason. Now the main function of root is generally the absorption of the water and the mineral from the soil. Now root modification, if the root perform the function other than the absorption of water and mineral, normally they become modified to perform other function. For example, root also first is they function as a storage of food, or they store food during the unfavorable condition. For the unfavorable condition, that they can use these stored food during unfavorable condition. So the example is the carrot, tap root of carrot, and the turnip. Now second example is the prop root. Prop root mainly responsible for the support of the for example banyan tree. These are the adventitious. The prop root is adventitious root which give rise and which are developed from the branches, different branches of the banyan tree, and these are the hanging type of root which generally perform or give support to the banyan tree. Now second is the third is the stilt type of root. Stilt root is also perform the function or also important for the support, and example is the sugarcane and maize. And the fourth type of root is nematophores. These are the special type of root. They are modified for the respiration. Example is मैंग्रोव फॉरेस्ट और मैंग्रोव जो ट्रीज होते हैं इनमें निमेटोफोर्स होते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन और कंज्यूम द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर सो दैट these are known as the pneumatophore because pneumo that means oxygen and force मतलब कि यहाँ पे reasons होते हैं और cause होते हैं जो respiration में help करते हैं. तो these are the different property of the root or modification of the root. There are on the basis of the structure and the development there are three type of root mainly formed in the plants or flowering plant, that is taproot, fibrous root and adventitious root. When the root develop from radical and the main primary root is present all over the throughout the lifetime, so that this type of root is known as the taproot. Now fibrous root in which the primary root develop degenerate after the some time and the secondary and tertiary root present throughout the lifespan, so that this type of root is known as the fibrous root. Now adventitious root, when root develop other than the radical part from the जो रेडिकल पार्ट के सिवा किसी और पार्ट से डेवलप करते हैं तो ऐसे रूट को
एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रूट। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।